So I think now we can formally begin the session. Very good morning to all and one present here. I, Anjali Shaukin, on the behalf of University School of Education, Guru Gobind Singh Indraprastha University, welcome you all to the first session of the last day of this faculty development program. And the theme of the FDP was National Education Policy, a Roadmap for the Future India. I welcome you, Professor. I welcome you, Mr. Anup Trivedi ji, and all the participants to this online FDP program. So before we begin the session, I request our technical team, Samaira and Paras, to please play the Kulgeet of our university. Over to you, Paras. And लाएंगे हम सच का सवेरा, गुरु कृपा का होगा बसेरा। विद्या की लौ और लगन से हट जाएगा यह तम घनेरा। इस धरा से आसमां तक हम बना ले अपनी ज्ञान गरिमा। अपने श्रम से कौशलों से हम बढ़ा ले अपनी मान महिमा। फैल जाए अपनी सुगंध हर दिशा में, प्रगति पथ पर ख्याति अपनी हो हवा में। बादलों से ऊंची अपनी उड़ान, हम करेंगे विश्व का कल्याण। हम इंद्रप्रस्थ की अंजुमन, हम इंद्रप्रस्थ को करते नमन। पाले गुरु गोविंद सिंह की राह, ज्ञान गंगा गगन हट जाएगा यह तम घनेरा। लाएंगे हम सच का सवेरा। thank you, Paras and Samaira, for playing this beautiful Kulgeet of our university. So now, to begin with the session, I would like to introduce the resource person of the day, Mr. Anup Trivedi ji, with all the participants. Mr. Anup Trivedi ji is well-known theatre artist and has been associated with theatre for almost 22 years. He is a great follower and scholar of the director Habib Tanveer. He has acted in more than 50 plays directed by eminent theatre personalities like B.M. Shah, Ranjit Kapoor, Bhanu Bharti, M.K. Rena, and many more. He has also worked in Sahitya Kala Parishad, Shri Ram Center in National Institute of Drama for almost 7 years. He was awarded by Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by Sangeet Natak Academy for his significant contribution as an actor in theatre. He has also been awarded fellowship on the role of music in folk theatre by Ministry of Culture, Government of India in 2012. He has directed many successful plays like Kabira Khaad, Bazaar Mein, Love Letter, Duvidha, A Midsummer Night's Dream, and the most recent one,
that is Dafa 292, based on Manto's short story, which has received critical acclaim from all over India, including Bharat Sangh Mahotsav. He has also worked in some films like Amir Khan's production Peeply Live, Deepa Mehta's Midnight Children, recently released Sherni with Vidya Balan, and many more. Presently, he is working as theatre consultant at Guru Gobind Singh Indraprastha University and teaches craft and theatre to MA MA English students. We welcome you, Trivedi ji. And I also want to invite Professor Dhananjay Joshi, Dean, University School of Education and Director of this Faculty Development Program, to please welcome Anup ji. Over to you, much, sir. Anjali. Thank you very much, Anjali. I have already, thanks to our resource person of the day, Anup ji. Anup Trivedi ji is not a very new name for us, as already been told by Anjali via his resume. We have seen his contemporary movies. अनूप जी का जो संघर्ष है वो थिएटर में जब हबीब तनवीर साहब थे, ये कम से कम 30-40 वर्षों से रंगकर्मी हैं और भारत का कोई भी ऐसा रंगकर्म थिएटर नहीं है जहां पर आज अनूप जी को कोई ना जानता हो। इंडिया के बाहर भी बहुत कम समय रहता है, क्योंकि अक्सर आजकल बॉलीवुड और ओटीटी में बहुत ज्यादा समय अनूप भाई देते हैं। तो परसों मुझसे एक दिन बात हुई, जैसे हम एफडीपी प्लान कर रहे थे तो हम अचानक मिले यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा अनूप जी एक दिन जरा आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी दे दीजिए, वो आपका जो इतना संपन्न अनुभव है उससे थोड़ा सा उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। आपको 5 सेकंड नहीं लगे कहते हुए कि आपके लिए कोई समय की कमी नहीं है, और हम बिल्कुल आपके जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए समय निकालेंगे। और संडे का दिन इसीलिए ध्यान में रखा क्योंकि उनके पास थोड़ा सा समय संडे के दिन था। तो अनूप जी, मैं आपका अपने विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ। ऑलरेडी आपने हमारे एमएड के बच्चों के साथ बहुत सारे पास्ट में, कोरोना से पहले बहुत सारे सेशन आपने हमारे बच्चों के साथ लिए, और थिएटर में एजुकेशन और थिएटर कैसे साथ साथ चल सकते हैं, शिक्षा और रंगकर्म कैसे इकट्ठे हैं, इसी पर आज आप संवाद करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आज 12:30 से हमारा वैलिडिक्टरी भी है। तो मैं आपका इस वर्चुअल मोड से इस आभासी पटल पर स्वागत करता हूं। वेलकम अनूप त्रिवेदी जी, धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you. And now I request Anup ji to please enlighten us on the theme, role of theatre in education in light of National Education Policy 2020. Over to you, Trivedi ji. सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट का, जोशी जी का, यूनिवर्सिटी का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कम से कम ये पूरा 2 साल गुजर गया कि थिएटर के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई कोरोना के कारण। और आज मेरा मतलब ये सौभाग्य कि मैं फिर बात कर पा रहा हूँ उसी विषय पे जो मेरा पसंदीदा है, मेरी मतलब जान एक तरीके से जिंदगी है। तो बड़ी खुशी की बात तो यह है कि थिएटर इन एजुकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे खाने में नमक ना हो तो कैसे रहे, ऐसे ही थिएटर में एजुकेशन में थिएटर ना हो। दरअसल क्या है, थिएटर करने का कतई मकसद ये नहीं है कि हम किसी भी स्टूडेंट के लिए ये प्रेरित कर रहे हैं उसको कि भाई वो सिनेमा की तरफ जाए या थिएटर की तरफ जाए, एक्टिंग की तरफ जाए। नहीं, थिएटर करने का मतलब है कि बेहतरीन इंसान बनना। और थिएटर ही सिर्फ एक ऐसी आर्ट है जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, लाइट, कॉस्ट्यूम, कोरियोग्राफी, सब कुछ ऐसी आर्ट है जिसमें सब कुछ है। और जहां सब कुछ है अगर अपने इस कला में, तो कितनी खूबसूरत बात है कि हम स्टूडेंट्स को ये प्रेरणा नहीं देते कि भाई आप एक्टर बनो तो इसलिए ज्वाइन करो, बल्कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनो, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आपका डेवलपमेंट हो, और आप अपना विचारशील बने और सकारात्मक हो, सृजनशील हो, क्योंकि ये सृजनशील होना सिखाता है, इनोवेटिव होना सिखाता है थिएटर। क्योंकि जहां आपके पास लिखने का चांस है,
कुछ ऐसा सोचने का चांस है कि जहां लिखा नहीं गया जिस विषय में, और आपके सामने एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, तो थिएटर की एक जिम्मेदारी होती है, थिएटर प्रैक्टिशनर की या एक अभिनेता की या एक रंगकर्मी की जिम्मेदारी ये होती है कि समाज के प्रति वो उतना ही दायित्व रहता है उसका कि वो उस विषय पे कुछ, अगर वो लेखक है तो कुछ लिखे, पेंटर है तो अपने माध्यम से वो इस सिचुएशन को कैनवास पे लेके आए। तो हम लोगों का जो कैनवास है वो है थिएटर। हम थिएटर के माध्यम से समाज की जो जो भी प्रॉब्लम होती है, यार लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, भले ही वो समस्या ना हो, कोई अच्छी बात हो, वो भी हम एक बेहतरीन तरीके से मंच पे लाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए थिएटर इसलिए बहुत बेहतरीन, बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि ये बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और टीम स्पिरिट और कुछ कर दिखाना है, सबसे अंदर उनके अंदर ये चीज आती है। और जिस बच्चे के अंदर जो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही शर्मीला है, मुझे तो क्या लगता है कि बचपन से ही हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार है। कहते ना, अरे छोटा बच्चा होता है, अरे बड़ा ड्रामेबाज है ये, उस वक्त हम उसको मजाक में सोच लेते हैं, मगर वो इतना मजाक नहीं है। दरअसल व्यक्ति के अंदर आर्ट है, हर व्यक्ति के अंदर ड्रामा है। शेक्सपियर ने तो कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है, हम उस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो वाकई दुनिया एक रंगमंच है, और एजुकेशन में इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो सिनेमा है या दूसरी आर्ट्स है, उन्होंने थोड़ा सा भोंडापन और थोड़ी सी अलग चीजें आई हैं, जबकि भरत मुनि और शेक्सपियर, ब्रेख्त, चेखव, प्रेमचंद, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भास, इन लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को एजुकेशन के साथ जोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो, अच्छा, और दूसरी बात, थिएटर एक ऐसा इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग माध्यम है एजुकेशन के लिए। आप जैसे, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में शेक्सपियर, मैंने उनको, मतलब उन्होंने पढ़ा, अब मैं कलाकार हूं तो मैं पढ़ाने का काम मेरा नहीं, और थिएटर पढ़ाया नहीं जा सकता। हम इस पर बात कर सकते हैं, थिएटर करने की आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है। इसीलिए इन 2 सालों में थिएटर हो ही नहीं रहा है। अब जो लोग दावा करते हैं कि चलो ऑनलाइन हम वेबिनार करेंगे, ऑनलाइन वर्कशॉप करेंगे, ऑनलाइन वर्कशॉप में मुझे बिलीव इसीलिए नहीं है कि ये और असंभव है। हाँ, इस पर बातचीत बिल्कुल संभव है, तर्क संभव है, विचार संभव है, और गोष्ठियां संभव हैं। जैसे कि आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इस विषय में बात कर सकता हूं मैं। तो क्रिएटिविटी हो गई और टीम स्पिरिट हो गई, बच्चों के अंदर ये बौद्धिक, है ना, इंटेलेक्ट वो पैदा करना, सोचना, इसमें है वोकल, फिजिकल, मोरल एंड सोशल। ये सारी चीजें मुझे लगता है एक आर्ट के अंदर आती है, और आर्ट थिएटर खास तौर से। बार बार मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थिएटर में सारी आर्ट्स है, क्योंकि वो जो फ्रेम है हमारा थिएटर का, जो मंच है, मंच दरअसल एक, आप मान लीजिए सिनेमा स्कोप है, उसी के अंदर कलर्स हैं, यानी लुक लाइक ए पेंटिंग। कौन एक्टर कहाँ खड़ा है, कोई फ्रेम कैसा दिखेगा, ये इसी सब उसमें। अब ये सिनेमा पे हो जाता है, यही कैनवास पे होता है, यही मंच पे होता है। कैनवास पे क्या है, वो पिक्चर बोलती है, कहानी बोलती है, वो कैनवास कहानी बोलता है। हमारा मंच, हमारे पास तो कितने हथियार हो गए, संगीत भी हो गया, कॉस्ट्यूम भी हो गई, कोरियोग्राफी हो गई, लाइट्स हो गई, मेकअप हो गया, और आपके पास संवाद हो गए। और संवाद ना भी हो, मंच पे एक अभिनेता अपनी आंखों के माध्यम से बोल सकता है, अपने अपीयरेंस से कुछ कहता है, ना भी बोले, अगर वो खड़ा हो गया आके, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाई ही इज स्टैंडिंग देयर, ये क्यों खड़ा है या क्यों खड़ी है, और क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा होगा, उसके प्रेजेंस में ही पता लग जाएगा आपको।
और थिएटर बच्चों में सबसे अच्छी चीज तो ये सिखाता है कि एबिलिटी टू स्पीक इन पब्लिक। जो बच्चे बड़े शाय होते हैं, शर्माते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वो थिएटर की एक वर्कशॉप कर लेते हैं और एक नाटक कर लेते हैं, उसके बाद तो घर में भी आके नाटक करते हैं, समाज में भी नाटक करते हैं और इतने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज में। क्योंकि क्या होता है, अब आपको एक वाक्य बताता हूँ। मेरी दरअसल जैसे कहते हैं ना, शुरुआत कैसे हुई, तो आपको शायद समझ में आएगा। रामलीला में मुझे बंदर बना दिया गया बचपन में। छोटा बच्चा था तो उन्होंने चलो ये बंदर बन जाएगा, तो मैं राम की सेना में बंदर बन। तो मुझे कुछ इनाम भी दिए गए, कुछ पैसे मिले गांव में। लोगों ने कहा अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो फिर मैंने अगले साल रामलीला हुई तो मैं खुद ही पहुंच गया। मैंने आप फिर करेंगे, जब आप हमेशा बढ़िया कहते हैं। तो धीरे धीरे होता ये गया कि मैं अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगा। और हमेशा मुझे ये मिला कि वाह भाई, कि यार तू तो बहुत अच्छा करता है। अरे आपने तो बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो जब उन्होंने शाबाशी इतनी मिलनी शुरू हो गई तो मुझे ये लगा कि अब तो यार मुझे यही करना है। एक वाक्य और बताता हूँ, ये पता नहीं ये कितना आपको सटीक लगेगा इस वक्त, लेकिन मेरे साथ हुआ ये। मैं स्कूल जा रहा था, बहुत छोटा बच्चा था, तो देखा गांव में सड़कों पे हमारे यहाँ चूना डालते हैं दोनों साइड्स में। जब कोई बड़ा अभिनेता, मतलब बड़ा कोई वो आता है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई लीडर आ रहा है या कोई आईएएस आईपीएस कोई आ रहा है, तो उसके लिए दोनों तरफ चूना और पत्तों के तोरण, अशोक के पत्ते के तोरण और गेंदे के फूल, वो सब चारों तरफ लग जाते हैं। तो अचानक स्कूल जाते वक्त मैंने पूछा, आज ऐसा शहर में क्यों हो रहा है हमारे गाँव में? तो किसी ने बोला कि फला फला वो आ रहे हैं, क्या नाम है, एसएसपी हमारे यहाँ के। तो बड़ी चीज होती है, एसएसपी साहब आ रहे हैं। तो मैं छोटा सा भीड़ में खड़ा होकर देखा, एसएसपी साहब उतरे, वो अपना पी कैप लगाया हुए और अर्दली उतरा, उनके साथ 3-4 सिपाही गार्ड वार्ड और ये वो। छाम मुझे लगा यार, बड़े होके मुझे भी यही बनना है। चलो, बात आई गई मन में, घर कर गई। कुछ दिन के बाद फिर मुझे दिखाई दिया कि एक, वहां पे पता लगा अब क्यों ये चूना और सब बिखेरा जा रहा है और क्यों मशकों से पानी सड़कें धोई जा रही है। बोले डीएम साहब और कमिश्नर साहब आ रहे हैं। मैंने चलो इनको भी देखते हैं। उनको देखा तो उनका रुतबा और बड़ा, क्योंकि वो तो पूरा कमिश्नरी का था। कमिश्नर साहब, उनके साथ एसएसपी डीएम दोनों और कमिश्नर साहब, और इतना तगड़ा रुतबा के बस पूछिए मत। पूरा शहर वहां पे, बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक थे वो उससे मिलने गए उनसे। मन में ये लगा यार मुझे अब यही बनना पड़ेगा, आईपीएस छोड़ो आईएएस बन जाते हैं। मन में करने लगा इस सवाल। कुछ दिन बीते ही होंगे, मतलब साल 1.5 साल उस वक्त चल रहा था महाभारत। तो महाभारत के दौरान शहर में चर्चा हुई कि अरे वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं, पता लगा वो हमारे यहाँ रिक्शे पे अनाउंसमेंट होता है कि भाइयों बहनों दिल थाम के रखिए, और अपने शहर में रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, उसमें पधारने वाले हैं मुकेश खन्ना, महाभारत के भीष्म पितामह, लीजेंड, ये वो सब रिक्शे पे अनाउंस हो रहा है ढोल धमाके के साथ। तो फिर मैंने जो देखा वो शायद अविस्मरणीय था मेरे लिए, कि मुकेश खन्ना जिस मंच पे आने वाले थे, चार बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया जिस पे कम से कम 50-60-100 लोग खड़े हो जाएं। एक बहुत बड़े ग्राउंड में, खेतों के बीच में, दूर दूर तक बांस बल्लियां शामियाने लगा दिए गए। और गांव से, अड़ोस पड़ोस के गांव से ट्रैक्टरों से, बैलगाड़ियों में, बुकियों में लोग आने शुरू हो गए। और पूरा अपना शहर तो जमा था ही, वो टाउन हमारा। तो यानी हजारों लोग थे। और मुकेश खन्ना आए तो मैंने देखा एसएसपी, वो जो आईजी साहब, कमिश्नर साहब, और क्या नाम है अपने आईएएस ऑफिसर जो थे, डीएम, मतलब कौन नहीं, डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस, और अपना यहाँ का जो लोकल लीडर, एमएलए, एमपी, वो सब। अरे मुकेश खन्ना के साथ भर भर के फोटो खिंचा रहे हैं और गले में हाथ डाल के, और ये वो। और मुकेश खन्ना ने जैसे एक शब्द बोला, एक डायलॉग बोला महाभारत का, पूरा पंडाल खड़ा हो गया। और तब लगा कि यार, अच्छा एक्टर सबसे बड़ी चीज है यार। तब मैंने डिसाइड किया चलो यार एक्टर बनते हैं अब, आगे ना पीछे। लोग कहते अच्छा करते ही हो, तो हमने कहा और अच्छा करेंगे। तो कहने का मतलब ये, छोटे से गांव से मैं आया, मेरे अंदर विश्वास कहाँ से आया?
परफॉर्म करने से, परफॉर्मिंग आर्ट्स से। जबकि चाहता तो मैं भी डॉक्टर बन सकता था, घर वाले यही चाहते थे। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से मैंने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, मगर ध्यान वहीं रहा हमेशा। तो हम आगे की बात पे आते हैं कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज थिएटर चिंतन सिखाता है, और उनके अंदर गहराई, डेप्थ जो होती है, सोचने की गहराई, फिलोसफिकल, इंटेलेक्चुअली, तार्किक तौर पे, प्रासंगिक तौर पे। अच्छा, विवेकानंद जी ने बच्चों के विषय में बोला कि छात्रों में जो गुणवत्ता होती है उसके 3 पक्ष होते हैं, कि क्वालिटी के 3 पहलू होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। एक होता है मानवीय, जो हम सब के अंदर है, एक मानवता। दूसरा होता है टेक्निकलिटी, और तीसरा होता है जिज्ञासा। ये हर बच्चे के अंदर ये 3 चीजें हैं। ये कैसे, ये क्यों। हमारे थिएटर में कहते हैं 5 W's, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु। यही एक एक्टर बनाता है। हु आर यू, व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग, व्हाई आर यू स्पीकिंग, व्हाट, व्हेन, व्हाई। ये और यही चीजें हैं जो कहते हैं यार ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो जिज्ञासा है, ये उनको प्रेरित करती है कुछ और करने के लिए, और थिएटर उनको इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि बेटा आओ हम इस विषय पे सोचते हैं, या चलिए इस विषय पे बात करते हैं। तो सबसे अच्छा तो ये थिएटर में, और थिएटर एक चीज और सिखाते हैं, देखिए डिबेट करवाओ आप उनसे ना, स्पीच, भाषण अलग अलग विषयों पे, इस विषय पे, उस विषय पे, और इनोवेटिव वो होंगे। और उनसे ये कहिए कि आप अपने तरीके से सोचो, उनको इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से सोचे, अपने तरीके से उस विषय पे। अगर वो एक्टर है तो एक्टिंग के लिहाज से सोचे, अगर वो राइटर है तो उस विषय पे अपने तरीके से सोचे। और आप एक दिग्दर्शक के रूप में, या इसीलिए जरूरी है कि वहां पे हर मतलब आपके करिकुलम में थिएटर की जरूरत है, मतलब आवश्यक है कि होना चाहिए थिएटर। पहले ही मैंने शुरुआत में ये कहा कि थिएटर का कतई ये मकसद नहीं है कि एक्टर बनाना है हमें। थिएटर का मतलब है कि बेहतरीन इंसान बनाना है, जो हर पहलू को बड़े फिलोसफिकल और सोच सके, मतलब दिमाग, मेंटली। और थिएटर में देखिए फिजिकल है, वोकल है, और मेंटली है, वो तो है ही है। कहानी का निर्माण कैसे हो, कहानी कैसे कही जाए, एक ही कहानी को बार बार अगर आप मंचन देखे किसी कहानी का या किसी नाटक का, हर मंचन अलग क्यों होता है? क्योंकि सबकी अपनी सोच है, निर्देशक का अपना नजरिया है। एक एक्टर अगर परफॉर्म करता है ओथेलो, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा अभिनेता ओथेलो को वैसे ही कॉपी करके वैसे ही परफॉर्म करे, उसका अपना तरीका हो सकता है। तो ये सोच का जो एक नजरिया है, दृष्टिकोण, समस्याओं को और चीजों को समझने का एक नजरिया, इसका विकास भी शायद थिएटर कराता है। बाकी देखिए यहाँ पे म्यूजिक है, लय है, ताल है, संगीत है। तो ये एक कहते ना, ऑल इन ऑल, मतलब सर्वांगीण विकास के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही उत्तम एक हथियार है। बहुत से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने हमेशा ये माना
कि कैसे हम मतलब किस आर्ट को सबसे सर्वोपरि रखा, वो थिएटर ही रखा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग सब है इसमें। चलिए, बातचीत अगर मैं अकेला करता रहूं तो मुझे लगता है अगर कोई और भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है, आप अगर लोग चाहें तो। Anup ji, जी the participants, they are very praising you in the chat box also. And in between, I requested you because there is one request from one participant, and we can see in the chat box that they are requesting you to please, you can perform for few minutes like something which you can act in this online mode, or if you can sing some song or you can act. So this is a request from Dr. Akash Ranjan. So I think your session is, I think it's very different from the other sessions. And जी it जी, is, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि ये पढ़ाया नहीं जाता, ये परफॉर्मिंग आर्ट है। जी 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 जी। थैंक यू, मैं बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ आपकी रिक्वेस्ट और उसको कोशिश करता हूँ आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो गाना सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको हल्की सी एक अभिनय की झलक भी दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी, वेलकम। सोन के सोन के सोन के चिड़ैया बोले कागा, तोरे पिंजरा ले। सोने के चिड़ैया बोले कागा, सोन के चिड़ैया बोले, सोन के चिड़ैया बोले कागा, तोरे पिंजरा ले। सोने के चिड़ैया बोले कागा, काहे को भटकत रे मोह माया के जाल मां, काहे भुलाए दिए जग के ते काम चोला, जग के ते काम। काहे भुलाए दिए जग के ते, काहे भुलाए दिए काम, तोरे पिंजरा ले। सोने के चिड़ैया बोले कागा, सोने के चिड़ैया बोले, सोने के चिड़ैया बोले कागा, तोरे पिंजरा ले। सोने के चिड़ैया बोले कागा, सोन के वाह वाह वाह, सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि आवाज को सुन के really में it's feels so good. And the participants, they are also writing. Niti Datta has written Kya Baat Hai. Then Anita Rani has written Wonderful Sir. Dr. Akash has written very melodious voice with the quality, sir. Again, Dr. Jyoti is writing very melodious songs, sir. May God Saraswati bless you. So thank you, Dr. Jyoti ji. And Dr. Shilpi is again saying, Wah sir, once more. Once more. So they are requesting, they are तो फिर बाद में requesting सुनाऊंगा। one पहले more. आपको एक बात बताता हूँ, हाँ एक जी, बड़ी अच्छी कहानी, दरअसल कहानी कहने का एक ढंग है। हाँ जी, बहुत शानदार बात बताता हूँ। जी, विजयदान देथा की एक कहानी है जिसमें क्या होता है, कहानी का नाम है नागिन तेरा वंश बढ़े। जी, तो उसमें क्या होता है कि एक लड़का है
जो दुकान पे, वो अपने दुकान पे गल्ले पे बैठा हुआ है और उसके गले में पड़ी हुई है नागिन, और उसको बीच में सोने के कचोले में वो दूध पिलाता रहता है नागिन को। अब एक विलिया खवास नाम का एक कैरेक्टर है, जो विलिया खवास का मतलब खवास है उनकी कहानी में होता है, विजय दांदेता की। तो वो क्या होता है, वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो सारी समस्याओं को हल करता है। मतलब उसके पास हर मर्ज का इलाज, बीरबल मान लो एक तरीके से, अकबर बीरबल वाला, कि उससे पूछते तो भाई बताओ, तो एक तरीके का उनका हर समस्या का हल करने वाला। तो एक व्यक्ति भागता हुआ आता है विलिया खवास के पास, यानी कि मेरे पास, कि बताओ ऐसे सोने के कचोले में वो उसको दूध पिलाता है। आज तो इस बात के मायने आपको बताने पड़ेंगे, वरना आपकी माठियां और सांकड़ियां वापस धरवा लूं। तो फिर मैं उसको जो बोलता हूं वो ये है कि बेटा ठीक है, मैं बताता हूँ ये दरअसल इस बात के मायने क्या है। वो कहता है इस बात के मायने बताओ तो जान लूं। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। नागिन को सोने के कचोले में दूध पिलाने वाला वो छोरा इसी गांव के सेठ करोड़ी धज का इकलौता बेटा है। आज तो सेठ सेठानी की उम्र 60 को पार कर गई, पर बचपन से तो 60 के नहीं थे। घुटनों के बल चलते चलते बचपन बीता। जवानी से 2-4 होते ही दोनों का ब्याह हो गया। दूल्हा 21 का, दुल्हन 15 की। 2 बरस बाद गोणा, 1 बरस बीता, 2 बरस बीते, जो बीतते 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 पूरे 25 बरस बीत गए, मगर सेठानी की कोख नहीं फली। सेठ जी के सर और दाढ़ी में सफेदी झांकने लगी। माया, अरे माया का तो उनकी हवेली में कोई हिस्सा भी नहीं था। माया और राज में रुतबा। पर निर्वंशीय की चक चक जब सेठ के कान में पड़ती तो बेचारे के कलेजे पे पारी सी चलती थी। वही होते हुए भी सेठानी ने सब्र रखा, पर सेठ की पीड़ा एक पल के लिए भी कम ना होती थी। आगे की कहानी नेक्स्ट सेशन में। Thank you so much, Trivedi ji, and the participants. I think they are also enjoying a lot. They are saying "Katil आवाज है," so magnificent. That was really so great. And I can see there is one question in the chat box. If you can answer that, that is the question by Dr. Aradhna. She is asking what sort of dramatic act can be done by teacher to make the teaching effective. If you can give demo. मैं आपको वही बता रहा था ना, मैं शेक्सपियर जब आपके हमारा एमए में और एमफिल पीएचडी, उसमें तो बच्चे शेक्सपियर के ऊपर तो बहुत काम करते हैं। तो बच्चों ने मिडसमर नाइट्स ड्रीम उनके सेशन में था उस बार। अब मैं पढ़ाता तो था नहीं वहां पे, एकेडमिकली तो उनको डिस्कस करना है कि शेक्सपियर ने ऐसा क्यों लिखा, और मतलब एकेडमिकली जो उसकी वो होती है चीरफाड़, वो प्रोफेसर्स बताएंगे। मेटाफर्स है वो प्रोफेसर्स बताएंगे। मगर मैं एक अभिनेता, निर्देशक, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, जो भी, मैंने कहा मैं परफॉर्म कराता हूँ आपको ये। तो मैंने उन सारे बच्चों के साथ मिडसमर नाइट्स ड्रीम खेलने को दिया, मतलब कैरेक्टर्स बांट दिया। तो उन्होंने वो कैरेक्टर्स पूरा 1-1.5 महीने हमने उसका रिहर्सल किया। और बड़ी बात सबसे यह है कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स उसमें 48 गर्ल्स थी मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। अब क्या हुआ, जब उन्होंने पढ़ा तो पढ़ा, वो अलग नजरिया था उनका, पढ़ने का अलग सोच थी।
लेकिन जब उन्होंने उन कैरेक्टर्स को जिया और आत्मसात किया एक तरीके से, मतलब अगर आपस में भी बात करते थे तो वो वैसे ही बात करते थे कि हर्मिया, हेलेना और ड्रामेटिस उस तरीके से बात करते थे आपस में, मतलब वो जी रहे थे उस कैरेक्टर्स को। तो उन्होंने पूरी कहानी हर बच्चे के मन में बजाय पढ़ने के इस तरीके से घुस गई कि वो जिंदगी भर वो नहीं भूल सकते कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम बेसिकली है क्या। क्योंकि पढ़ाते करते वक्त हम लोग ये भी डिस्कस करते थे, बच्चे पूछते थे कि सर आपने ऐसा क्यों किया इस सीन में। तो ये एक तरीका है कि आप अब कहते हैं ना कि अब 4 चीजें आपने ली, ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूं कि अब 1 2 3 4 हम कहते हैं तो बच्चे करते करते 1 2 3 4, लेकिन उनके सामने 4 ऑब्जेक्ट रख दिए 1 2 3 4। पहले एक रखा, व्हाट इज दिस इज 1, दूसरा रखा बोले 2, फिर तीसरा 3 और ये 4। तो अब उसको 1 2 3 4 जब वो 4 चीजें उसको लगे तो अच्छा ये 4 होता है, उसमें से एक कम कर दिया आपने। अब बोले कितना है बेटा, 1 2 3, बोले 3, बोले 4 में से एक गया तो क्या हुआ 1 2 3, ये परफॉर्म भी तो हो रहा है। और ये मुझे लगता है बहुत आसान गेम है, खेल खेल में शिक्षा। पता नहीं लगेगा उनको अब वो कब सीख गए, कब उन्होंने मिडसमर नाइट्स ड्रीम उनके अंदर घुस गया। तो मुझे लगता है कि ये थिएटर एज ए लर्निंग टूल वी कैन यूज। Very true. Very true, Anup ji. I do agree with your point. And Dr. Rajiv Ranjan Dwivedi has also written a fantabulous, sir. Then Dr. Jyoti has written amazing dialogue delivery. And yes, Dr. Jyoti Tiwari is also saying, true, sir, the learning is highest when it happened to learning by doing. यस। So I think that's really great. And I think by this अच्छा we मैं एक चीज बताता हूँ आपको बड़ी मजेदार, जी पता नहीं अब वो किताबें आती है नहीं आती है, मैंने तो बड़ी बस बेसिक बात कर रहा हूँ। गाँव में हमारी जो किताबें आती थी साइंस की बहुत छोटी वाली, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक फिफ्थ तक आती थी, या आगे भी आती नहीं होगी पता नहीं, उसमें लिखा होता था विज्ञान आओ करके सीखे। ओके, विज्ञान आओ करके दो सीखें। डॉट विज्ञान 2 डॉट आओ करके सीखे, मतलब लेट्स डू इट, है ना। That's great. तो मुझे लगता है आओ करके सीखे में तो परफॉर्मिंग आर्ट है, लेट्स बिल्कुल डू इट। अब बिल्कुल परफॉर्मिंग आर्ट को पढ़ा तो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल डांस का मतलब ये होता है कि जब हम एक पैर उत्तर की तरफ घुमाते हैं, पीछे पीछे दक्षिण की तरफ एक राउंड लेके फिर उत्तर ये डांस नहीं सिखाया जा सकता ऐसे। या मैं डायलॉग बोलूं कि डायलॉग का तरीका ये होता है बेटा इस पे ऊपर ले जाओ, अब ठीक है यहाँ पे आ जाओ। तो ये तो करके ही बताऊंगा ना, या करके ही सीखेंगे आप। और मुझे क्या लगता है, मैं एक चीज और बताऊं, मैं सब दोस्तों से साथियों से बोल रहा हूँ, जी सर। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप स्टूडेंट बने रहे, अपना मतलब ओपन रखें दिमाग, दिल और दिमाग ओपन, खाली खुला रखें और खाली रखें, ज्यादा चीजें ना भरें, स्टोर ना करें। मतलब स्टोर होगा तो होगा, वो अपना होता है, पता नहीं होता कि आपने कब चीज कब पढ़ी थी, कब चीज कब देखी थी जो आज काम आ गई। मेरा कहने का मतलब ये ओपन रखें, खुला खोले रहे, जिज्ञासु रहे, जानने की इच्छा रखें हमेशा। मतलब ये किसी के लिए भी है, मेरे लिए तो है ही है। और मुझे लगता है कि मैं रोज कोई ना कोई नई चीज मुझे समझ में आती है। मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद इतना कहते हैं इतना ज्यादा बातें कर पाऊंगा इस विषय में। जी ठीक है, बोलने से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजें करने से ही आती हैं। और जितना ज्यादा हम करेंगे, जितना ज्यादा परफॉर्म करेंगे, आई थिंक हम उतना ही सीखेंगे और उतने ही पुख्ता होते जाएंगे, बिल्कुल। यस यस बिल्कुल। उतने मजबूत होते जाएंगे।
मतलब हम लगातार कोई चीज का अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, यस, है ना? वो तो ये हमारी बहुत बहुत ही फेमस सेइंग है ये हमारी, जो हमने हमेशा से सुनी है. एंड आई थिंक बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, एंड देयर इज वन suggestion in the chat box. We will like to invite you very shortly in Rajiv Gandhi University, which is a central university. So one of the participant, Dr. Akash, is saying that he will very shortly wants to invite you in the annual function of the university. So thank you, Akash ji, and I think it's a pleasure for all of us that Anup Trivedi ji will be performing at that platform also. So thank you very much for such an enlightening session on the topic role of theatre in education in the light of National Education Policy 2020, because I think all the policies talks about the importance of theatre in education and how that can be used effectively in the education. So we are highly obliged with your performance in the session. We really liked, and I think all the participants have also liked. You have put, you can say, such an energy in the session. And I think on the valedictory day, when we are having the valedictory session just after your session, I think it's a kind of something energetic which has happened in this session. And that has highly motivated all the participants, including us. And thank you for sharing your personal experiences of childhood, about your participation in Ram Leela, and how that motivated you to act in the dramas and then later in the movies. You have shared the incident of the photo shoot with the Manoj Khanna. So I think that has also motivated you and the other people which must be along you. You also told in the session that you got confidence with the performing arts, and I think it is very much required by all the persons. Then whenever they perform something, they will get the confidence. And you rightly told that you can become the doctor, professor, by and any other profession you can be like, you can choose, but you have choose your interest, that is to perform in theater. And that is I think that is the reason behind that you have reached to the film industry these days, and your acting is also very appreciated. And I think that will be more and more appreciable, more and more get vast in the coming future. So we really liked your session. It's highly motivated to all the participants. And in the end, I again want to thank you for giving your precious time with us. And I, on the behalf of all the participants and University School of Education, again wants to thank you. We are really grateful. Thank you so much, Trivedi ji. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you. And I invite, let me see. I think Dhananjay sir is not here right now. Maybe some technical issue. Shalini ma'am, you want to say something? Or we can end this. Or we can end this session and we will again join in 15 to 20 minutes for the valedictory session. Ma'am, you Okay. are not audible. हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. मुझे नहीं, शालिनी मैम को. We अच्छा, can अच्छा, see. अच्छा. Okay. So I request all the panelists to put your video on so that we can have the screenshots. Thank you very much, Anup ji, once again. And Thank you. Thank you. Welcome. And now we are ending the session. And we will again join in 20 minutes for the valedictory session, valedictory ceremony, in which Professor Muhammad Mia, the former Vice Chancellor of Manu, and Professor C.B. Sharma, Professor of Education and the former Chairman of NIOS, will join in the valedictory session.
So till then, we are taking break, and we will join in the same link which we have shared. The link will be same for the valedictory ceremony also. So thank you. Thank you, Okay, Trivedi ji. Thank you very much. थैंक यू मैम, बाय 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 सारे दोस्तों को।